Hello everyone. So today again we are starting with our accounts classes. Okay. Actually इतने दिन थोड़ा सा छुट्टी लिया था मैंने. So again I'll be uploading some videos on your syllabus, right? So today we'll be discussing about share capital. Okay, a company's share capital. Okay. So तुम्हारे कॉलेज में इन इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग. एक मिनट रुको भाई, अच्छे से लिख लेता हूँ. राइट. अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. राइट. अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. Okay, sir. So look here, in your college they might first first 10 days, yeah, first 15 days they will purely teach you only theory. Okay. एंड बचे हुए 5 से 7 दिन या एक हफ्ता या एक 10 दिन they'll teach practical in a speed of 1.5x. Okay, 1.5x, and they'll leave many of the concepts in practical part, right? But it's not the case, students, because as I know that in the future if you choose any proficiency course like CA, CS and CMA, वहाँ पे थेरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो रहता है ना, दैट शुड बी इन अ मस्ट. Okay, that's very important, right? So when you learn practical more than the theory, it will be very effective, right? So in this chapter तुम्हारे कॉलेज में या in CA, CSE में they will call this as company accounts. Okay, company accounts, right? So company accounts, I'll bifurcate this chapter in theory, जो तुम्हारे कॉलेज में ऐसे रट्टू तोते की तरह पढ़ाते हैं, राइट? दिस इज प्रैक्टिकल पार्ट, राइट? प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग अभी देखेंगे, थ्योरी पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, राइट? ओके. सो सर प्रैक्टिकल में क्या क्या है? प्रैक्टिकल में यू पीपल हैव, ओके, इन योर सिलेबस, दैट इज जर्नल एंट्रीज. नेक्स्ट, लेजर अकाउंटिंग नहीं है, थैंक्स फॉर गॉड. स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल. नेक्स्ट, बैलेंस शीट. ओके, उसको स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट मत कहना, ठीक है? बैलेंस शीट. शेड्यूल 3. ओके सर, शेड्यूल 3 क्या है ये मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है? फर्स्ट विल डील विद जर्नल एंट्रीज, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, राइट? सो इसके अलावा अकाउंट, अदर देन द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट, you people have cash flow statement. Next, you people have comparative statement, right? Comparative statement. We'll deal with these two after some days, right? So okay, so this is the main thing, right? So now look here, before going to anything, pehle we have to I'll make your brain so effective that you will differentiate all these. Okay, you will differentiate all these. So before that I'll make you understand who is an equity shareholder, who is a preference shareholder, who is debenture holders, and who is current liability holders. Okay, so why? Because as I've seen, I actually take classes in online mode, so I have seen my students, they won't actually understand who are these people. Okay, who are these people? So we'll understand who are these, right? So यहाँ पे देखो,
मैं सारे लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, सो दैट एवरी वन विल गेट टू नो, राइट. दिस इज अ कंपनी कॉल्ड झंडू लिमिटेड. झंडू लिमिटेड, और झंडू लिमिटेड का प्रोप्राइटर है या एंटरप्रेन्योर है झंडू, झंडू भैया, राइट, झंडू भैया. ये है, ये दुकान है मिर्ज़ापुर में, राइट, मिर्ज़ापुर में कट्टा लेके घूमेंगे, राइट, ओके, मिर्ज़ापुर में, ठीक है भाई. और as you know, as a proprietor, he must have invested some of his savings or some of his money into the company. Let's say 10 lakh rupees. 10 lakh rupees इसका कैपिटल है भैया, कैपिटल बोलते हैं उसको, राइट, कैपिटल है, राइट. सो जस्ट अ सेकेंड, आई विल प्रिपेयर अ बैलेंस शीट फॉर यू. ओके, दिस इज माई बैलेंस शीट. ये एक्चुअली कंपनी अकाउंट्स का बैलेंस शीट नहीं है, दिस इज अ सोल प्रोप्राइटर बैलेंस शीट, बट यू हैव टू अज्यूम इट एज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. And in the balance sheet you will be having equity shareholders, preference shareholders, debentures. You might have seen 9%, 8%, कुछ तो ऐसे लिखा होगा, and current liabilities. ओके सर, मैं बहुत एवरेज बच्चा हूँ, मुझे ये चारों लोग मुझे पता नहीं, प्लीज़ सिखाइए. देखो, विल गो विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स फर्स्ट. ओके, राइट, ये है प्रोप्राइटर था, झंडू प्रोप्राइटर है, पी लिख लेता हूँ, ये प्रोप्राइटर है, राइट. एज यू नो, अभी 10 लाख इन्वेस्ट हुए, झंडू लिमिटेड इनकॉर्पोरेट भी हुआ, इनकॉर्पोरेट मतलब स्टार्ट हुआ, और उसका कमेंसमेंट भी हुआ, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी हुआ. नाउ व्हाट हैपेंस इज झंडू लिमिटेड फ्लरिशेस वेरी वेल, ओके, आफ्टर सम ईयर्स. एंड झंडू को लगा, झंडू कौन है, हमारा प्रोप्राइटर को लगा दैट ही नीड्स सम मोर मनी. Okay, he needs some more money to invest, right? Why, sir? Because as company is flourishing, the company needs more funds, okay, to make better itself, right? So उसको लगा कि भाई इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है जितना कंपनी को चाहिए, तो I'll go to public. सर पब्लिक मतलब, अरे पब्लिक मतलब यार जनरल पब्लिक, ओके, किसी के पास ऐसे ही. I'll go to general public. Okay, let's say I'll take these people as, I'll just take 5 people, okay, right. मैं ना इनके साथ एक पैसे लूँगा, right. So I'll take some money from these people, okay. So let's say he gives 10 lakh rupees, he gives 5 lakh rupees, and he gives, just a second, current, I think there, just a second guys. La la la. ओके, राइट. आपने कुछ देखा तो नहीं, नहीं देखा, ठीक है, राइट. ही गिव्स, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो भाई, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. ही गिव्स 10 lakh rupees again, and he gives 10 lakh rupees, right.
ओके जी। तो क्या हुआ अभी, कितना हुआ, 10, 20, 30 एंड 40। ओके सर, 40 लाख रुपीज़ झंडू को मिले, और वो 40 लाख रुपीज़ झंडू ने अपना झंडू लिमिटेड में का इन्वेस्ट किया, राइट। ओके, सो नाउ टेल मी सर, ये पैसे जो झंडू झंडू लिमिटेड को मिला, झंडू को नहीं भाई, कंपनी अलग, कंपनी का ओनर अलग, ये फर्स्ट पीयूसी का कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस में आएगा क्या, एंटिटी कॉन्सेप्ट, राइट। बिजनेस अलग, बिजनेस ओनर अलग, राइट। ओके, मैं ये नहीं सिखाने वाला हूँ अभी तुम लोगों को, राइट। राइट सर, देखो, कंपनी को मिला 40 लाख रुपीज़। नाउ दीज शेयर होल्डर्स विल आस्क हिम, अरे भाई देख, पहले सिर्फ तू ओनर था, यू वेर द ओनर, ओनली वन ओनर, नाउ वी हैव गिवन आवर मनी टू योर कंपनी, नाउ यू हैव टू गिव योर ओनरशिप टू अस ऑल्सो। हाँ कि ना, दिस इज वेरी लॉजिकल, बिकॉज ऐसे ही कौन पैसे देगा भाई, 10-10 लाख रुपए कौन ऐसे ही पैसे देगा। सो दीज पीपल आस्क्ड हिम द कंपनीज शेयर्स, द कंपनीज शेयर, राइट। ओके, लुक हियर, कंपनी शेयर। तो इसने क्या किया, पहले इसको 100% मिलता था, अभी इसको कितना मिलेगा भाई, अभी इसको 100% से थोड़ा तो कम मिलेगा ना, 100% से थोड़ा तो कम मिलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू दैट कैलकुलेशंस राइट नाउ, ओके। सो व्हाट आई टोल्ड इज, हाँ ठीक है, आई विल बी गिविंग यू सम राइट्स ऑफ द कंपनी, ओके, आई विल बी गिविंग यू सम राइट्स ऑफ द कंपनी, एंड नाउ लुक हियर, अभी क्या हुआ, कंपनी बंद होना शुरू हो गया, बाद में 10 साल के बाद या 20 साल के बाद क्या हो रहा है, कंपनी बंद हो रहा है। now what happens is I'll pause here for some concept, okay, I'll pause here for now, and I will take back you for this concept, okay, just a second। now look, ये 5 बंदों को आप लोग याद में रखो, मैं बाद में आऊँगा इस पर, राइट। अभी थोड़ा सा आपको आपका ब्रेन पॉज लेना चाहिए। now look here, now look, again what happens is 40 लाख लिया, 40 लाख लेने के बाद उसको क्या लगा कि हाँ, कंपनी नीड्स अगेन सम मनी, now what happens is he'll again go to some general public, okay, general public, right। तो उसने क्या किया, सॉरी, उसने क्या किया, जनरल पब्लिक के पास गया फिर से, और यहाँ पे 4 बंदों को हम खड़ा करेंगे, 5-6 को करेंगे, right, so you can relate with this, okay। Let's say these people are very low risk takers, what sir, these people are very low risk takers, so ये लोग ना बहुत पैसे नहीं दिए, ये लोग, he gave 2 lakh rupees, he gave 3 lakh rupees, he gave 4 lakh rupees, he gave only 1 lakh rupees, he gave only 80,000, okay, he gave only 80,000। what they told is, भाई देख, we don't have any money to give you, lots of money to give you, so do one thing, ये जो पैसा है ना, पैसा हमको मिलना चाहिए, पहले हमको मिलना चाहिए, when the company is getting terminated, or when the company is getting stopped, or when the company is getting winded up, okay, तभी हमको पैसा देना। so can I not say now, resume your brain, अभी ये सारे पैसे कंपनी को गया, सारे पैसे कंपनी को गया, डोंट वरी, ये तो गया, ठीक है। now after 10 years or after 20 years the company is getting winded up, आफ्टर 10 और 20 ईयर्स द कंपनी इज गेटिंग वाइंडेड अप, सर भैया वाइंडेड अप मतलब कंपनी बंद हो रहा है, राइट। अभी झंडू को याद आता है, कि अरे हाँ, कभी कंपनी बंद हो रहा है, और जो ये 5 बंदे हैं ना, हम इनको मान के चलेंगे ABCD E मुझसे पूछे थे, ठीक है, मुझसे पूछे थे कि
They asked me before 10 or 20 years, they had asked me that I have to pay them first the amount they have given to the company. ओके, मैं एक काम करूँगा, पहले उनको पैसे दे दूंगा, राइट. सो झंडू क्या किया, पहले 2 लाख ए को दिया, 3 लाख एंड 4 1 और 80,000 रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को दिया वापस. बाद में कुछ भी पैसे बचे वो इन लोगों को गया, राइट. वो इन लोगों को गया. सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या हुआ था, ये जो 5 बंदे हैं ना, जो 10 लाख 5 लाख 5 10 10 दिए थे, they had not asked to the company to repay them first. Okay, they in fact they have taken the rights of the company, in fact they have taken the shares of the company, but ABCDE did not do that. वो लोग क्या पूछे थे, पहले हमको दे, बाद में बचा तो तुम लोग बांटना. तो कैन आई नॉट से पहले इनको, जब वाइंडिंग अप होता है पहले इनको मिलेगा सारे पैसे, बाद में कुछ भी बचा कुचा पैसा इनको इनको देने वाला था, इनको देने वाला है झंडू, राइट. झंडू और ये 5 बंदे. सो कैन आई नॉट से दीज पीपल, what these people are the real owners? रियल ओनर्स. रियल ओनर, ओनर मतलब क्या? ओनर मतलब प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब द रिस्क टेकर. अभी नाउ लुक, इफ देयर इज ओनली 20,000 इन द कंपनी, ओके 20,000 इन द कंपनी, सो 20,000 जब वाइंड होने वाला है पहले इनको दिया जाता है, राइट. पहले इनको दिया जाता है. ये कितना हुआ बे? 5 9 10, 10 और 80,000, राइट. 10 लाख 80,000 इनको दिया गया. 20 लाख में से 20 लाख में से वो 10 80 इनको इनको दे दिया, राइट. अभी कितना बचा भाई? 920 कुछ भी बचा, 920 कुछ बचा. और इस 920 these people will be sharing, these and this people, this person will be sharing. So these are the real owners now, right? These are the real owners. That is why these people are called what, sir? These people are called preference shareholders. Okay, preference shareholders. And preference shareholders are not the real owners. Why? Because they are not the risk takers. ओके, बिकॉज दे आर नॉट रिस्क टेकर्स, इसीलिए उन लोगों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं, राइट. सर और ये 5 बंदे कौन हैं? ये 5 बंदे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो मेरे को अभी पता चला कौन इक्विटी शेयर होल्डर्स है और कौन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, राइट सर, ठीक है, राइट. मैं एवरेज बचा था और मुझे मीनिंग भी समझ में आ गया, राइट. और ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, हु आर द रियल ओनर्स? ही इज द रियल ओनर, द रियल ओनर. अरे ओनर, राइट. कौन? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स. Okay, so in the next class I will be discussing who is debenture holder and who is current liability. Okay, who is debenture holders and who is current liability. Okay, so till then stay connected. Okay, so आपने अगर कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भाई, प्लीज़. आप सब्सक्राइब करो वरना मत करो, मुझे वो संबंध नहीं, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो, बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर दिस नॉलेज. ओके, आई वॉन्ट टू शेयर दिस नॉलेज. मुझे कमाना वाना कुछ भी नहीं है, आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर दिस नॉलेज वेयर द कॉलेज नेवर टीचेस दो स्टूडेंट्स. ओके, that is this is what my motive is in this class sessions. Okay, so अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भाई प्लीज़, अगर if you want to actually grow with the this proficiency course. Okay, so bye guys, bye, thank you. चलो बढ़िया हुआ.